वो पूर्ण हो गया और एक वो पूर्ण नहीं होता है। Once it is accomplished, what happens? You get proud that I have accomplished my desire, and your desire, you see, you take it for a particular case study of your desire and then go for it. Then go, you think that when your desire established हो गया, now one level up my desire will go. एक कोई पहले अहंकार आ जाएगा कि ये desire मेरा हो गया, and your desire will go one level up. Second, वो desire fulfill नहीं होता, तो आपको क्या होगा? दुख। और क्या होगा? आपकी बहुत इच्छा थी, like हाँ, गुस्सा होगा। Like couple of years back, एक बहुत it's small incident. I had a friend of mine and उसकी wife का birthday था, and birthday anniversary कोई भी function आप समझो उसका था, where they were supposed to celebrate their love. She had a lot of expectations from him and he had a lot of expectations from her, और कुछ भी हुआ नहीं। Now जिसके प्रति आपको उम्मीद थी और वो ही कुछ नहीं करता है, वो झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कामना थी, काम थी, उसकी इच्छा थी उसके साथ, और जब आपका पूर्ण नहीं होता है वो ही क्रोध बनकर आ जाता है। How fast it flips because the expectations were not met. Now if you see that कितनी अपनी thinking किस लेवल की है, you will forget all the past history what has happened, and suddenly एक दिन, एक घंटे वो expectation meet नहीं हुई, you will put all the blame of 20 years on that. ऐसा होता है कि नहीं होता है अपनी जिंदगी में? हाँ, especially on those birthdays and anniversaries कुछ ज्यादा होता है, सही है? तो it will flip. अपन जिसके ऊपर प्यार करते हैं, जिसके ऊपर अपनी काम है, उसी के ऊपर अपन क्रोध भी करते हैं। What is the example of शूरपणखा? शूरपणखा किसके ऊपर मोहित हुई थी? हाँ, राक्षस नहीं, किसके ऊपर? हाँ, राम के ऊपर। उसकी इच्छा पूरी हुई? हाँ, नहीं हुई ना, तो उसने क्या, उसके भाई को जाकर क्या बोला? I want to finish राम। उसने तो उकसाया था उसको। She fell in love with whom? Ram, and then she only wants to finish. पलटी मार गई। अपन भी इस तरीके से कितने बार, जहां अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है, अपन पलटी मार देते हैं। एंगर अपन करते कि नहीं करते? करते हैं अपन। कौन नहीं करते हैं एंगर? सब लोग एंगर नहीं करते। मैंने पूछा कौन नहीं करता है, तो एक भी हाथ। I'm checking whether तुम लोग यहाँ सो रहे हो कि जाग रहे हो। तो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन। अपने लास्ट टाइम एंगर मैनेजमेंट लिया था, उसमें एक व्हाट आर द टूल्स, कोई एक टूल बता सकता है? बुक निकाल पॉज था। वी लव दैट मोमेंट ऑफ पेशेंस। सही। अब सी कितने बार अपने को बोलेंगे एक ग्लास ठंडा पानी पियो तो आप ठंडे हो जाएंगे, 10 लंबी श्वासें लो तो आप ठंडे हो जाएंगे। जब आप गुस्से में हो तो आपका गंदा खोपड़ा आईने में देख लो, look at your own dirty face, तो आप ठंडे हो जाएंगे। Then those Japanese people have that release your anger, उनका अपना एक टेक्निक है। अपने we learned the moment of patience, सही है? Now उस moment of patience में अपने pause दे दिया। Today one more technique I am adding to it, because अपन एंगर की बात कर रहे हैं, because first we said रजोगुण का धक्का, उससे अपनी काम जाता है, सब अपनी इंद्रिय काम, मतलब इंद्रिय हो गया, मन हो गया, उससे अपन पाप करने बैठते, वो पूरा नहीं होता है तो अपन क्रोध में आ जाते हैं। सही, we have come to that level now. 3 stages में उसको बांटा है। तो let's analyze little bit of क्रोध। अपन कैसे क्रोध को एक नया टेक्निक में देता हूँ आज आपको। In that pause, anger, like okay, let's think of it as an abbreviation. Anger, A-N-G-E-R, like WHO का full form क्या है? UNO का full form क्या है? Now I'll give you a litmus test. In that moment of patience, I'm giving you 5 words of this anger. We'll explain what is A for, what is N for, what is G for, what is E for, what is R for. आप वो split second में जो आज अभी ये सीखने वाला है ना, your mind will process that, and then you will realize whether I need to get angry or not. ऐसा आप कर सकते हैं? I'm not saying that angry आप वो जब आएगा धक्का तब anger होने वाले आप. But now you have to be aware that I need to give it the pause. In that pause, I need to put this litmus test into practice. What is this litmus test? First word, A. Assertive. Don't do anger by assumption. Know your facts well. क्या ये गुस्सा करना जरूरी है कि नहीं है? अपन ये 5 litmus test के थ्रू निकालना है अपने आप को। In that split second, our mind is very fast in processing. गुजराती मारवाड़ी लोग है ना, कैलकुलेशन अपना बहुत फास्ट है, माइंड बहुत फास्ट चलता है वैसे भी।
assumption देखी नहीं। जैसे अभी शिल्पा अभिजीत है, उनका अवधेश आया, छोटा बच्चा, वो आया बोलते 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 शिल्पा के पास आया कि अनन्या, वो सॉरी रोता हुआ आया, अनन्या शिल्पा स्ट्रेट गई अनन्या के पास और उसको बम्बार्ड कर दिया। She did not verify the fact whether Ananya is at fault or not. उसके मन में वो assumption है कि अवधेश मेरा छोटा सा बेटा, वो तो नादान होगा ही, कोई शैतानी करेगा भी नहीं, ये अनन्या ही करेगी, बड़ी बच्ची है मेरी। So you don't verify the facts. So in that split second, start, ये सब पांचों पॉइंट आपको याद रखना है। I'll ask you now after that. Assertive, don't go by assumptions. Know your facts well. Second, नॉन-वायलेंट, आपके गुस्से में आपको ये ख्याल रखना है कि मैं नॉन-वायलेंट हूं। अपना जैन सिद्धांत है नॉट टू बी वायलेंट, अहिंसा की अपन क्या बोलते हैं, पूजा करते हैं, सही है। आप कभी भी गुस्सा करो, आपको तन से या मन से किसी को हर्ट नहीं करना है। हम लोग जिम में थे, मैं, सुरेन, रुपेश आया कि नहीं आया? सुरेन कहाँ है? हाँ सुरेन, और पीयूष कहाँ है? हमारे जिम पार्टनर सबके सब है आज, और एंड विनय। सुरेन आया, उसके अपना पट्टा था, उसको लग गई थी। क्या बात सुरेन, देखो लग किसी की यहाँ इतनी जोर से, तो उसने बोला वो कोई बात नहीं, वो मिनल है ना, थोड़ा सा फूल फेंका था मेरे ऊपर। लोग भी सोचे यार ये फूल फेंका था और उसमें इतना पट्टा और बैंडेड और ये सब कैसे लग गया, मतलब कुछ तो बात होगी। वो फ्लावर के साथ फ्लावर रेस हुई। तो आप मेरा जब गुस्सा करो ना तो फिर फूल ही फेंकना प्लीज। तो जब आप जैसा आप गुस्सा करें, आप ऐसा मत, कोई भी ऐसा वायलेंट एक्ट मत करना ताकि सामने वाले का तन को हानि और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके मन को हर्ट कर सके। कितने बार आपको गुस्सा रोल प्ले के लिए करना पड़ेगा, but ये litmus test in that moment of patience you need to go through. Third goal, you should be very very clear why are you angry. फटाफट आपको मालूम होना चाहिए what is my ultimate goal of this anger. Lot of mothers have that कि बच्चों के ऊपर चिल्लाना तो पड़ता है उनको डिसिप्लिन लेकर आने के लिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ काफी लोग जी रहे हैं। आपने कभी गुस्सा नहीं किया? बहुत किया। So we should be very very, our mind should be very clear अपना गोल क्या है, सही है? Fourth, E, I should not use this anger as an ego satisfaction tool. Majority of the times अपन जब गुस्सा करते हैं, अपन किसके लिए बोलते? अपनी बात। वो कौन सी मूवी थी, कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, बस कहते हैं, उसमें भी बहुत गुस्सा और ईगो भरा हुआ है। He just wants that my way is the right way. He did not care about family, not care about his wife, he did not care about anything. It was all satisfying because he is such an authoritative person. My way is the right way. It was just satisfying his ego. तो उसका वो एक स्टेटमेंट में ऐसा लगता है वो हर समय गुस्सा ऐसा नहीं कि बोलकर होता है, कभी-कभी साइलेंस में भी इतना गुस्सा भरा हो सकता है, So he would say very subtly, but उसमें बहुत गुस्सा भरा हुआ था। So we should be very clear. It is not अपना कहीं अपन सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एंगर तो नहीं कर रहे, क्या अपना रियली है कि सामने वाले का बेनिफिट के लिए अपन कर रहे हैं। कभी-कभी बच्चों को थप्पड़ भी मारना पड़ता है, but you should know that just to show your power, don't do it. See, this is a very minute calculation, minute thinking that you need to start bringing in yourself before you get angry in any aspect of your life. Third, last, R, responsibility. आप ये ख्याल रखना कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस एंगर के, उसकी जवाबदारी मेरी है। कितने बार अपन सोचते हैं कि सामने वाले को सुधारने के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, बट मालूम पड़ता है कि सामने वाला ही भाग जाता है आपके गुस्से के कारण, because your direction is not right. So you should be very very careful by knowing your responsibility. If you know that the consequences are good, go ahead. You need sometimes to pretend that anger, but sometimes we are not aware of our responsibility. बस अपन कर लेते। So ये सुषमा, delete this slide. One second. Remove it. I'm going to ask them now. They remember. A. This side पे रोक बोलेंगे मेरे को। One second. Don't go by. N. सही, किसी को हर्ट नहीं करना है
है गुस्सा करके भी अपने को? G. You should know very clearly what is the purpose behind my anger. Very very clear. E. It is not something to satisfy my ego only. सही है? And R. Take full responsibility. You should be. जो भी consequences होंगे मेरे गुस्से होने से उसकी पूरी जवाबदारी मेरी. So once you know the responsibility, अपना suddenly अपना act अलग हो जाता है. We become more responsible. So we learned the moment of patience. Today we learned the litmus test. Now we will put it in tasks and sadhanas to apply this. You have to see monitor your results. जब अभी गुस्सा तो आता ही है. It's not something. अच्छा कितने बार अपन कितने चीज अपन जब हाई स्पिरिट्स में होते हैं ना, मैं अभी कितने आपको बोलूंगा कि ऐसी गलती वैसी गलती, लाइक यू नो सम रियली बैड थिंग्स, इफ आई टेल यू, यू विल रियलाइज दैट ऐसा तो मेरे में होता ही नहीं है. I will not do it. I will never do certain things. ऐसा नहीं होता. वो जब मौका आएगा तब आप कर सकते हो. ये ख्याल रखना. I'll give you an example. ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, उसको जब रजोगुण का धक्का आता है ना, if he is not aware, वो किस लेवल पे गिर सकता है ना, you don't know. It can go any level down. जेमिनी मुनि को कोई जानते? जेमिनी मुनि के बारे में किसने सुना? एक पुराने थे, उनके गुरु थे गुरु व्यास. गुरु व्यास ने उनको बोला कि काम वासना एक ऐसी चीज है, वो बोलते मेरे को आ ही नहीं सकती. इट्स इम्पॉसिबल. मैं इतने साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ. इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर मी. एंड यू आर इन सच हाई स्पिरिट्स. वी आल्सो समटाइम्स इन सर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट सो मेनी थिंग्स आर सेइंग अपन ये कर ही नहीं सकते. मैं अल्कोहल पी ही नहीं सकता हूँ, मैं सिगरेट फूंक ही नहीं सकता हूँ, मैं कितनी चीजें गलत काम कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा अपने मन में हो. तो मैं गैम्बलिंग कर ही नहीं सकता हूँ, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी व्यसन में नहीं कर सकता हूँ. बट जब सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं और उस समय रजोगुण का जब धक्का आता है, फोर्स ऐसा आता है, मैं कैसे फिसल सकता हूं? वी लर्न बाय दिस एग्जांपल, दिस स्मॉल स्टोरी. तो जेमिनी ऋषि ने व्यास जी को बोला ऐसा मैं हो ही नहीं सकता है. 7 दिन 10 दिन बीत जाते हैं. जेमिनी ऋषि अपने कुटिया में है और बहुत बारिश हो रही है, वो अपनी साधना कर रहे हैं. एंड सडनली ही सीज फ्रॉम फार अ लेडी एंड इट्स टोटली रेनिंग एंड शी इज टोटली वेट एंड ड्रेंच्ड. You can imagine, or even just आप एक imagine करो ये situation अपने मन में. Why are you laughing? ये भी एक प्रॉब्लम है. ये सब इमेजिनेशन, बिकॉज अपने इतना इनपुट अपने अंदर डाला है. वो मूवी का सीन आ जाएगा, वो मूवी का सीन आ जाएगा, मंदाकिनी आ जाएगी, ये सब आ जाएगा. क्या हुआ? ये सब आपने इनपुट अपने अंदर डाला है. आपने सही जाना, मंदाकिनी आई. I can read your mind. सही है. तो ये सब इनपुट किसने डाला है? आप लोगों ने ही अपने अंदर डाला है. So when situations come like this, ये सब इनपुट से ही बाहर आएगा. So what we should be careful about? What goes? अच्छा, आप कितने बार सुपरमार्केट में lot of people go for brunches, वो होटल में वो कॉर्नफ्लेक्स का रहता है ना, तो अपन नीचे से उसको ऐसा टैप करते तो कॉर्नफ्लेक्स निकलता रहता है. सही है. Then they put more cornflakes on top of it. Now अभी आज तक अपन एक बैलेंस शीट पोजीशन बनाएंगे तो अपन अपने पुराने इनपुट्स को कुछ कर नहीं सकते. जो अंदर जा चुके हैं वो जा चुके हैं. अपन नए इनपुट्स अपने हाथ में हैं. तो अभी अपन सोचेंगे इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएटली मैं सपोज चोको फ्लेक्स डालूंगा और नीचे से निकल जाएगा, वो नहीं होने वाला है. कंटिन्यूअसली पहले क्या निकलेगा? कॉर्नफ्लेक्स ही निकलेगा. पर निकलते बट मैं नया अगर वापस कॉर्नफ्लेक्स डालूंगा तो क्या होगा? कॉर्नफ्लेक्स ही निकलेगा. बट मैं नया चोको फ्लेक्स डाला है, एक बार वो कॉर्नफ्लेक्स खत्म हो जाएगा और एक दिन वो चोको फ्लेक्स निकलने लगेगा. So the new input has to go in, right? You can't do anything much about the old inputs. जैसे वो आते जाएंगे वो निकलते जाएंगे. But you have to be very very conscious of your new inputs. आपकी इच्छा है चोको फ्लेक्स डालने की तो आप चोको फ्लेक्स डालें. तो ये सब जैसे सिचुएशन है आपके मन में, वो पुराने इनपुट्स है, तो वो इनपुट डालने की जवाबदारी अपनी. अभी आज की बात तो अपन अपनी, we can take control of it. सही. Coming back to that example, so she came and she was drenched, totally drenched. जेमिनी मुनि को करुणा है. सब कितने बार गलत काम ऐसे करुणा से चालू होता है. you put it stand कि मेरी अच्छी भावना थी, करुणा वाली भावना थी. वो इनवाइट करते हैं उनको, आप प्लीज अंदर आइए, आप प्लीज चेंज हो जाइए, प्लीज लाइक टेक her to the room with full respect. She goes to the room, whatever clothes he has, जो ऋषि के जो भी clothes है, she gives him a towel and this and that and everything. वो वापस बाहर आ जाते हैं. no, ऋषि मुनियों को भी कुछ ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं. जैसे अपने साधु भगवंतों की भी
श्रावक जो भी ब्रह्मचर्य पालते हैं उनके भी अलग नियम है। दैट्स व्हाई दे से इतना रात को नहीं मिलना चाहिए, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसे ये नियम नहीं बनते, ऐसे ये नियम नहीं बनते हैं, ख्याल रखना। वरना अपन सोचेंगे 20-20, 30-30, 40-40 साल साधुपना पालने के बाद ऐसा कैसे विकार जा सकता है? जा सकता है, इसके लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। नाउ ही केम इन क्लोज, मींस क्लोज मतलब उनको शी गॉट ड्रेस्ड अप, कि उनकी वापस इच्छा हो गई, भूखे प्यासे होंगे। So they went, he went inside to ask her, are you feeling hungry or thirsty or anything? She said, yeah, I'm feeling a little thirsty, so can I have a Starbucks? My example, I could put in anything I want. So Starbucks आ गया, और option में can I have a Tim Hortons hot chocolate? I love hot chocolate. Of course, it was not available over there. तो जेमिनी ऋषि ने जो उनके पास था बोला कि I have this उकाली हुई चाय, ये गर्म है, आप ये ले लीजिए। तो उनको दे दिया। Then again जेमिनी ऋषि then वापस उनको ख्याल आता है कि अभी ये थक गए होंगे, generally you are wet and all that, you are tired, so let me offer a bed for her to relax and sleep. तो जाकर उनको वापस बोलते हैं कि can I offer you something so that you can rest? She says yes, I don't mind resting. इस 2-3 बार जब वो वार्तालाप हुआ, उस बीच में उनका विकार वो आ गया, रजोगुण आ गया पास से, टा उनका विकार जाग गया। He saying he is now not able to control his health, but he had his own protocol. So he went to her and said that, will you marry me? I am not able to control myself. Will you marry me? She said that yes, I don't mind marrying you, but my father has put in a condition. The person who wants to marry me has to become a horse and has to go 7 rounds, like 7 फेरे की तरह 7 फेरे, and I'll sit on him. He said no problem, I am ready for that. वो घोड़ा बन जाता, उसको अपने पीठ पर बिठा देते और वो 7 फेरे लेते, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद he feels that I have done it, now I have married her, now she is mine. वो he could not wait, वो अपना हाथ ऐसा ऊपर करते हैं to touch her ताकि he can kiss her, and वहाँ मालूम पड़ता है जब दाल पे हाथ लगाते हैं तो दाढ़ी निकलती। वो थे मुनि व्यास। मुनि व्यास ने उनको ये सबक सिखाया कि देखो इतने साल की साधना के बाद भी रजोगुण का जब धक्का आता है और आप फिसलते हो, आपकी अवेयरनेस की स्थिति से आप नीचे आते हो, इसका काम विनाश का काम। This is there it can go in the worst thing possible. Okay, one very important question is why does अपने कितना सत्संग बहुत सुने हैं, अपने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, अपने बहुत सारे लेक्चर्स भी सुने हैं, अपने बहुत अच्छे लोगों से भी मिले हैं, पेरेंट्स से भी शिक्षा लिए, इतना ज्ञान अपने बटोरा है, तो क्यों तो भी ये ज्ञान मेरे काम नहीं आता? जब ये रजोगुण का धक्का आता है, वो ज्ञान कहां गया मेरे को बता। आई नो इट्स बैड, वो ज्ञान भी है मेरे को, बट वो ज्ञान गया कहां? You see a mirror. There's a mirror. It's mirror. Yeah. Now this I think it's not clear because of the light. ये mirror में you cannot see your image. ये रजकण जो धूल से पूरा का पूरा अपन धीरे काम और क्रोध के रजकण है ना, इस मिरर के ऊपर अपने ज्ञान को ढक देते। ख्याल रखना, जो अपनी जो वासनाएं हैं, डिजायर्स है, ये सब अपने ज्ञान को ही ढक देते। सूर्य है, सूर्य की रोशनी के सामने अगर बादल आ जाएगा तो क्या होगा? क्या वो रोशनी देना बंद कर दिया? क्या उसका ज्ञान खत्म, क्या अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान खत्म हो गया? क्या अपना दूसरा जो अपने ज्ञान अपने लिया हुआ है वो क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, उसके सामने वो आवरण आ जाता है। क्या चीज का आवरण? अपने ही काम और क्रोध का आवरण आ जाता है, और दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग। उस समय वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता बिकॉज़ इतना आवरण आ चुका है। तो ख्याल रखना, वो ज्ञान गलत नहीं। द मिरर ऑलवेज गिव्स यू द ट्रू इमेज, बट उसके ऊपर अगर वो धूल आ गई है तो वो क्या कर सकता है? वो बेबस हो जाता है। You have to understand that state. So we need to, what we need to do is to make that by our awareness we need to clean the mirror. By our awareness, nothing else. We need to clean the mirror. If अपना ज्ञान अगर clear है तो अपन फंसेंगे। It's as simple as that.
ओके, नाउ द सेम थिंग वी आर टेकिंग रजोगुण का धक्का, उससे क्या होता है, इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस, अपन गिरते हैं, अपना काम जागता है और काम के कारण क्रोध भी जागता है। नाउ शास्त्र बोलता है कि इस काम और क्रोध को आप आपके दुश्मन मानो। व्हाई डज इट यूज द वर्ड शत्रु मानने, इतना बड़ा क्यों बोला कि उसको शत्रु का स्टेटस क्यों दिया, कोई बता सकता है? आत्मा के मूल गुण की घात करते हैं। बिल्कुल, और व्हाई डज इट मेक इट एन एनिमी, उससे आपका विनाश होता है। वेरी नाइस। अपने में ना सब में एक हिसाब से एक क्षत्रिय छुपा हुआ है, सब में, आप में सब में एक कंपटीशन का भी, आपको कंपटीशन में लेकर जाते हैं ना तो आप लोग अच्छा जान जाते हैं चैलेंजेस में, वैसे अपने में सब में एक क्षत्रिय भी है। जैसे शत्रु का इसको देंगे ना नाम, तो अपनी को इच्छा होती है मैं अपने शत्रु को खत्म कर दूं, उसको मैं लोअर स्टेटस अपन देंगे ना तो मजा नहीं आएगा, तो उसको हायर स्टेटस देकर, उसको शत्रु का स्टेटस देकर आपका जो क्षत्रिय अंदर है उसको जगाते, एंड यू जस्ट वांट टू फिनिश इट, यू जस्ट वांट टू किल इट, इस तरीके से। सो नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट दैट वी वांट टू फिनिश दिस काम एंड क्रोध। तो अपन क्या करें, अपन एक युद्ध के अंदर एंटर कर रहे हैं और अपने को, अपना ही अंतर युद्ध है जिसमें अपने को अपने काम और क्रोध को फिनिश करना है। समझना, अपने काम और क्रोध को फिनिश करना है तो वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। सही, युद्ध कला अपने को सीखनी पड़ेगी। तो युद्ध कला में पहली कला क्या है? Can anyone tell me what is the first कला जो अपन सीख सकते हैं? परफेक्ट, नो योर एनिमी, मास्टर है। नो योर एनिमी वेल एंड नो योर एनिमीज फ्रेंड्स आल्सो वेल। अभी जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी है? एक तरफ जर्मनी के साथ कौन था? फ्रांस था, इटली था, जापान था, द मेन दिस थिंग, दिस इज वन ग्रुप। और दूसरी तरफ कौन था? रशिया था, इंग्लैंड था, और कौन था? नहीं, फ्रांस और इस तरफ था, हाँ, यूएस था। सो यू हैड रशिया, यू हैड यूएस, यू हैड इंग्लैंड, यू हैड फ्रांस ओवर देयर। इस तरफ जर्मनी था, इटली था, जापान था। नाउ इफ जर्मनी वाले को सोचना है तो उसको सोचना है, अगर उसको युद्ध जीतना है तो उसको सोचना है मैं कौन मेरे को घेर रहा है। तो जर्मनी को कौन घेर रहा है? फ्रांस घेर रहा है इसको इस बाजू से, जर्मनी इज हियर, फ्रांस इस तरफ है, इंग्लैंड इस तरफ है, रशिया ऊपर है। तो ही नीड्स टू नो ऑल हिज एनिमीज एंड ऑल हिज एलाइज वेरी वेरी वेल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी काम के कौन है, अपना जो अपनी काम है उसके एलाइज कौन? Who are the people who are supporting your main enemy? Your main enemy is established here as काम and क्रोध. उसके supporters कौन? नौकरशाह। Let's not go very very technical. Desires. नहीं, वो तो desire is established as your enemy. काम is desire. Desire is established as your enemy. क्रोध is established as your enemy. उसको support कौन देता है? We need to know your enemies. That's what we are doing as the first. अपने को युद्ध लड़ना है तो first we should know your enemies. अपने इंद्रिय, अपना मन और अपनी बुद्धि. So let's learn IMB. इंद्रिय, मन और बुद्धि ये अपने काम को पोषण देते हैं. So we need to know them. We need to understand how they work very well. अगर अपने को ये युद्ध जीतना है, सही? Now we'll go by an example to explain this entire thing. इंद्रिय, मन और बुद्धि को समझने के लिए 2008 I'll just bring this photo once. 2008 का रिसेशन आ गया. उसके बाद ये लोग 4 फ्रेंड्स, कौशिक, कौन है तुम्हारे ग्रुप में? धर्मेंद्र, कौशिक, पीयूष और कौन है? आकाश. आकाश है कि नहीं? कहाँ गए? छोड़ने गए. ये 4 फ्रेंड्स, रिसेशन हो गया. उसके बाद सबने बोला यार ये मेन बिजनेस तो चलता नहीं, एक साइड बिजनेस चालू करते हैं अपन सब लोग. तो सब ने साइड बिजनेस का एक सोचा. तो एक कॉटन का बिजनेस मन में आया कि लेट्स ऑल डू कॉटन का धंधा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, सस्ता आइटम है कॉटन का. तो उन्होंने गोडाउन अल्कूज में ही बाजू में गोडाउन ले लिया
और दे ऑल इन्वेस्टेड टुगेदर एंड दे स्टार्टेड दिस कॉटन का बिजनेस। गोडाउन कुछ दिनों बिजनेस चला, उसके बाद दे रियलाइज दैट वहाँ रैट्स बहुत है, there are a lot of rats in that, and that is rats are very bad for cotton, raw cotton. तो ये लोग क्या बचपन से टॉम एंड जेरी बहुत देखा था इन लोगों ने। So they said that इतने सारे कैट्स है तो एक अपने को बिल्ली रख देंगे, वो बिल्ली नहीं, अपना बिल्ली नहीं है, sorry।